Yes, good morning. So today we are going to start the new chapter, that is share capital. About this chapter, you people already know because you have done in your +1 class, that is sources of finance. So share capital is not a new term for us. Share capital is that major source of finance for every type of public limited company, right? So in this chapter, we are going to discuss accounting treatment. So hereby we are related with accounting treatment of share capital, right? Accounting treatment of share capital. Thereby you just learned the type of share capital, the type of shares like equity and the preference shares, that all theory is same, that we will be picking at the last or in the revision sessions. We will be taking that theory portion, but filhal we are going to start with accounting treatment of share capital. How the books of accounts are to be maintained, how the share capital is being recorded by the public limited company. It is dead sure that share capital is always being issued by the public limited company. Done? So every question will be related to the public limited company. They will be asking the public, they will be inviting the public to invest their saving in their company. So he will be framing the question like that way. If I talk about the numerical portions, then we have, he will be talking about the face value of the share. Pure chapter mein you will be reading about the face value of the shares. He will be giving you the face value of the share. Sometimes he will be calling it nominal value of the share. Right. Then it is a rule that whole of the amount the company can't demand from the public in a single installment. सारा पैसा कंपनी एक इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवाती. सो हाउ द इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी फ्रेम्ड. पूरे क्वेश्चन में आप जब पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा, देन कंपनी विल आस्क फ्रॉम द पब्लिक टू पे एप्लीकेशन मनी. इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या चलेगा. फर्स्टली द इन्विटेशन विल बी सेंट by the company to the public. If that invitation is being accepted, public वो invitation accept करती है, and through prospectus, भाई prospectus के through invite किया जाएगा या brokers को appoint किया जाएगा offer for sale. आप लोगों ने किया हुआ है financial management business studies में, ठीक है. Through that middleman, the public is being invited. When that invitation is being accepted, they apply for the share. और apply को हम लोग बोलेंगे they subscribe for the share. ठीक है. It means कि they are applying for the share. As and when they are applying for the share, सारा सिस्टम आजकल ऑनलाइन है. They are supposed to pay application money. It means कि पहली इंस्टॉलमेंट उनको अप्लाई करने के साथ ही उन्हें पे करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हर शेयर 10 रुपए का है कंपनी का. द मनी द कंपनी हैज डिसाइडेड एंड दिस विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन. एंड देन आई एम अज्यूमिंग ₹2 एप्लीकेशन मनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो ₹2 के हिसाब से आई हैव टू पे 10,000. इट मीन्स कि एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास चले जाएगी 10,000. उसके बाद 1 महीने का गैप, 15 दिन का गैप, दैट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द कंपनी. और तब तक कंपनी ये डिसाइड कर लेगी कि मेरे को इतने शेयर देने हैं कि नहीं. ठीक है. अब शेयर देने हैं कि नहीं उसे बोलेंगे अलॉटमेंट. लेट मी राइट इट हियर. अप्लाई एप्लीकेशन के बाद जरूरी नहीं आपने जितने के लिए अप्लाई किया कंपनी आपको उतने ही शेयर अलॉट करे. कंपनी विल डिसाइड प्रोपोर्शनेटली. ठीक है. यहाँ कंपनी फुल अलॉटमेंट भी कर सकती है. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है फुल अलॉटमेंट हुई है कि पार्शियल अलॉटमेंट हुई है. तो जैसे ही अलॉटमेंट के बारे में कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी विल सेंड मी अ मेल. ठीक है. एंड विद अ लेटर लाइक वी फील हैप्पी दैट यू आर बीइंग अलॉटेड दीज मेनी शेयर्स. ठीक. एंड नाउ पे अलॉटमेंट मनी. इट मींस कि सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी अलॉटमेंट मनी. राइट. अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट इज ₹3 पर शेयर. एंड आई एम अज्यूमिंग जितने मैंने अप्लाई किए थे उतने ही मेरे को मिल गए. इट मींस कि अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में मैं कंपनी को 15,000 पे करूंगी. ठीक है. अब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, उसकी एंट्री करेगी. कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी, उसकी एंट्री करेगी. उसके बाद अगले इंस्टॉलमेंट्स को हम बोलते हैं भाई फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. मैक्सिमम 2 कॉल्स रहेंगी. हमारे सिलेबस में इतना ही है. थर्ड कॉल बहुत कम होती है. और साथ में फाइनल क्यों लगाना. दिस इज द लास्ट कॉल. 5 रुपए आ चुके हैं. नाउ आई एम अज्यूमिंग 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल है और बाकी 2.5 रुपए सेकंड कॉल. ठीक है. So like that way the company is asking the shareholders
टू पे द अमाउंट, होल ऑफ द अमाउंट विल नॉट, मतलब शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो लंप सम में कंपनी बहुत कम बार डिमांड करती है. कंपनी विल ऑलवेज बी आस्किंग द पब्लिक टू पे द इंस्टॉलमेंट्स different amounts the company has decided, and accordingly these installments are being paid by the shareholders, right? So we are going to start with the numerical portion only, जो 2-4 pages हैं theory के, that we will pick later on. और इसके बारे में बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आपको थर्ड बुक में करवा दी हुई है मैंने. शेयर कैपिटल की टाइप्स कितनी होती हैं, दैट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, जो वो बहुत बार 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करो. सो वी हैव द क्वेश्चन में कभी इक्विटी शेयर्स की बात करेगा, कभी प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेगा. सो व्हाटएवर ही इज टॉकिंग अबाउट in the paper or in the question, accordingly you will be having the same treatment, because चाहे equity shares हो चाहे preference shares हो, accounting treatment will remain same. सिर्फ आप entry में change कर दोगे word. equity है तो you will write equity share capital. अगर क्वेश्चन में वो प्रेफरेंस शेयर की बात करता है देन यू विल राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट. सिर्फ आपने नाम के आगे प्रीफिक्स सा लगा देना है. सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, हो सकता है एक कंपनी इक्विटी भी इशू करे, प्रेफरेंस भी इशू करे, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिफरेंशिएट, राइट. अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल्स हैं, एंड व्हेनेवर दीज कैपिटल्स आर बीइंग शोन इन द बैलेंस शीट यू हैव टू गिव द डिटेल ऑफ दीज कैपिटल्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स. आपको सिखाया हुआ है थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के डिफरेंट हेड्स और सब हेड्स रहते हैं. अब उस सब हेड में मैं कौन से हेड की बात कर रही हूँ, शेयर कैपिटल. और शेयर कैपिटल में आगे क्या आता था आपका, शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स की सारी डिटेल कहां पे होगी, नोट्स टू अकाउंट्स में होगी. और नोट्स टू अकाउंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, क्योंकि पहली इलस्ट्रेशंस उसने कुछ ऐसी ही बनाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, हाउ दीज आर टू बी शोन. पहले हर टॉपिक का आपको मतलब पता होना चाहिए, नंबर 1, एंड दिस विल ऑलवेज रन इन सीक्वेंस. ठीक है, ये हमेशा सीक्वेंस में चलेगा. लेट मी राइट द नेम्स. दिस इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, देन वी हैव इशूड कैपिटल, सीक्वेंस में चलेगा. देन वी हैव सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब के भाई आगे 2 पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. इलस्ट्रेशन में बताऊंगी क्या डिफरेंस है दोनों का. और अगले को वो कहता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड. सब्सक्राइब बट वर्ड लगाता है, एंड नहीं लगाता. बट नॉट, ओ माय गॉड, yes what I was telling you, these are the types of capital. अब एक एक लाइन में इनका मीनिंग है भाई. What do you mean by authorized capital? It is the maximum limit of capital which a company can raise. और इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है कि मैक्सिमम आप मार्केट से कितना पैसा रेस कर सकते हैं पब्लिक से. इससे ज्यादा कैपिटल कभी भी आप रेस नहीं करोगे. एंड अबाउट दिस यू हैव टू मेंशन इन योर प्रॉस्पेक्टस, अबाउट दिस यू हैव टू मेंशन इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. All types of capitals are to be mentioned clearly in your memorandum of association under capital clause. सिखाया हुआ ना आपको MOA +1 क्लास में. 2 main documents the company is supposed to prepare. One is AOA and other is MOA. MOA में आपने इस कैपिटल की पूरी डिटेल बतानी है. And this is only to be mentioned in notes to accounts. ठीक. For example, I am assuming authorized capital कंपनी की 50,000 शेयर्स हैं at the rate of 100 each. ठीक. तो कितनी कैपिटल हुई, 50,000 की पहले 4 0 देन 2 more. इट मीन्स की कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल इज 50 लाख. ये वो कैपिटल है जो टोटल में कभी ऐड नहीं होनी. इस कैपिटल को लिखने के बाद आपने डबल लाइन लगा देनी है, दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. दिस इज व्हाट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द कैपिटल व्हिच द कंपनी कैन रेज. एंड यूजुअली कंपनी 50,000 के 50,000 शेयर एक बार में नहीं इशू करती. कंपनी इस कैपिटल में से कुछ हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 25,000 इशू करे, बाकी 25,000 अपने पास रिजर्व फॉर्म में रखे. जब कंपनी को कंटिजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ेगी, बाकी शेयर कंपनी तब रेस कर लेगी, और उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. जो कैपिटल अभी तक नहीं रेस करी, पेपर में आता है ये भी. व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल? सो रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल व्हिच हैज नॉट येट बीन रेज्ड, जो कंपनी ने अभी मार्केट में रेस नहीं करी. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल. अब मैंने बोला सारा कुछ चेन में चलेगा. Issued capital, it is that part of the authorized capital for which company is inviting the public.
टू अप्लाई फॉर। ये ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट है जिसको कंपनी पब्लिक से इनवाइट करती है। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल यू कैन रेज 50,000 शेयर्स, और कंपनी पब्लिक से 30,000 शेयर्स ही सिर्फ इशू करती है, और पब्लिक को बोलती है मेरे पास आपको देने के लिए 30,000 शेयर्स हैं, यू कम फॉरवर्ड एंड अप्लाई फॉर द शेयर्स। इट मींस कि 20,000 कंपनी ने अभी इशू नहीं किया, दैट कैन बी नेम्ड एज रिजर्व कैपिटल, राइट। Each and every next type of capital is a part of the earlier one. Like issued capital authorized का part है तो subscribed issued का part होगा, तभी मैं बोलती हूँ चेन में चलना, ठीक है। I'm repeating the line. Issued capital is that part of authorized capital for which a public limited company is inviting the public to apply for. Issue किया means apply करो, आप इतने शेयर खरीद सकते हो, and that is again for example 100 rupees, वो तो face value will not change at all. Face value will remain same, so it will come to us 30 lakh. This is again an information, क्योंकि ये पैसा आया थोड़ी ना, हमने लोगों को बोला इतने के लिए अप्लाई कर सकते हो, अभी आया थोड़ी ना पैसा। So this is also not to be added in the grand total. इस कैपिटल को भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखना है और इसके बाद डबल लाइन लगा देनी है, इसको ग्रैंड टोटल में ऐड नहीं करना। अब नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, दोनों में से एक होगा, कभी कभार दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, दैट वी विल सी इन द एग्जांपल व्हाट आई हैव रिटन। Subscribed and fully paid, then subscribed but not fully paid. So, अगर कोई पूछे simply, what do you mean by subscribed capital only? It is that part of issued capital for which the public has applied. ये issued capital का वो part है जिसके लिए लोगों ने हमारे shares के लिए apply कर दिया. Sometimes it can be equal to the issued capital, sometimes it can be less, and sometimes it can be more. How come? आपके पास बेचने को और देने को shares 30,000 है। मान लो आपको एप्लीकेशन से 30,000 की आती है, यू विल अलॉट ऑल द शेयर्स। मान लो आपके पास देने को शेयर्स कितने हैं 30,000, एप्लीकेशन 40,000 की आ जाती है, यू आर अ रेप्यूटेड कंपनी, द पीपल ऑलवेज वेट फॉर योर शेयर्स, उस केस को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। उस केस में कंपनी को कुछ शेयर्स को डिनाई करना पड़ेगा, कुछ एप्लीकेंट्स को डिनाई करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट इन दिस चैप्टर वी विल बी रीडिंग अबाउट प्रो राटा अलॉटमेंट। द कंपनी विल बी यूजिंग अ प्रोपोर्शनेट मेथड, कईयों को रिजेक्ट कर देगी, जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 3 शेयर दे दिए, जिसने 5 के लिए अप्लाई किया उसको 4 शेयर दे दिए, लाइक प्रोपोर्शन रेशियो। द वे ही विल बी गिविंग द इंफॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन, इन द सेम मैनर वी विल बी सॉल्विंग एंड वी विल बी अलॉटिंग इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, issued capital is a part of authorized capital and subscribed capital is a part of issued capital. This is only the subscribed capital which I will be showing in the grand total, क्योंकि subscribed capital वो capital है जिसके लिए लोगों ने मेरे को अप्लाई किया और पेमेंट भी कर दी। Now दोनों में डिफरेंस क्या है? फुली पेड का मतलब है हमने जितने कमाए शेयर होल्डर्स ने उतना पे कर दिया। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर है, मैंने 100 के 100 रुपए मंगवा लिए, और लोगों की तरफ से फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस आई हैं 25,000, ठीक है, और फुली पेड फर्स्ट केस आई एम अज्यूमिंग फुली पेड 25,000 into 100, इट मींस कि सब्सक्राइब कैपिटल आपकी कितनी है 25 लाख। दिस इज द सिंपलेस्ट केस। इस 25 लाख को उठाओ और बैलेंस शीट के ऊपर लिखो शेयर कैपिटल हेड, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे कॉल्स इन एरियर वाला केस और शेयर फोर फीचर वाला केस, एज एंड व्हेन ही विल बी प्रोसीडिंग इन द चैप्टर ही विल बी डिस्कसिंग फ्यू न्यू टर्म्स, ठीक। फिलहाल मैंने आपको और अगले का भी थोड़ा सा मीनिंग देख लो, अदरवाइज एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा आपको। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, आपने मंगवाए हैं 100 रुपए, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने 70 रुपीज पर शेयर ही पे किया, इन दैट केस 20 रुपीज इज नॉट बीइंग पेड, तो उस कैपिटल को आपने अलग से लिखना, विच इज नॉट फुली पेड, आपने उसको क्या लिखना है अलग से लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25,000 शेयर है, 2,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 70 रुपीज पर शेयर पे किया, so this 2,000 shares you will be writing under subscribed but not fully, और इसमें से माइनस कर दोगे 25,000 में से 2,000 माइनस करके, इट मींस कि फुली पेड आप कितने हुए 23,000, 23,000, ठीक है। 23,000 शेयर होल्डर्स ने सारी की सारी मनी पे कर दी, दिस ही विल गिव you in the question and accordingly he will be asking you present these capitals in the balance sheet। तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन पुराना ट्रेंड ये है, कई बार वो पूछ लेता है, ठीक। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। So directly I am picking the example. This is repetition for you, page number 8.15, company's balance sheet, format of company's balance sheet करा हुआ है बुक नंबर 3 में, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 होगा और उस नोट नंबर 1 में ये सारी कैपिटल की डिटेल होगी, राइट। और उसमें से ऑथोराइज कैपिटल आप टोटल में ऐड नहीं करते, आप इश्यूड कैपिटल टोटल में ऐड नहीं करते। आप कौन सी कैपिटल टोटल में ऐड करोगे? वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सेकंड इज फॉर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, दैट इज ओनली टू बी एडेड इन द ग्रैंड टोटल। बाकी सारी चीजें आपको पता है, मैंने रिपीट नहीं करनी बिकॉज द चैप्टर इज रिलेटिंग विद शेयर कैपिटल, सो वी विल जस्ट बी पिकिंग अ पॉइंट, a single point, that is what share capital. And very first point under the head कौन सा हेड है? शेयर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स की आगे सब कैटेगरीज हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना, एग्जांपल नंबर 1 नहीं, वो तो थ्योरी में समझाया जैसे मैंने समझाया आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मेरी बुक का पेज नंबर है 8.16। बुक नहीं लेके आए बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ऊपर लिखेंगे, बैलेंस शीट बनानी है क्योंकि मैंने पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो। कंपनी का नाम है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज नोट नंबर एंड दिस इज अमाउंट, ठीक है। फॉर योर रेफरेंस एक दो बार मैं लिखूंगी, देन आई विल बी लीविंग दीज कॉलम्स ब्लैंक and you have to learn the name of the columns. This is note number, नहीं पूरा लिखा जाता तो diagonally you can write this is amount, साथ में वो लिख रहा है INR, इंडियन करेंसी, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट दो पार्ट है ना भाई, नंबर 1 रोमन में मैं लिखती हूँ, देन नंबर 2 एसेट रहता है, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी रहता है। पहले बैलेंस शीट की उस पार्ट की हेडिंग लिखो, मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट। अब इसमें सबसे पहली सब हेडिंग है, या दिस इज अ पार्ट हेडिंग। अब मेन हेडिंग में लिखूंगी दैट इज व्हाट शेयर होल्डर फंड, उसे भी अंडरलाइन करूंगी, राइट, कर दिया अंडरलाइन। अब इसका सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, कोई डिटेल यहां पे नहीं लिखनी, ये तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, जो डिटेल लिखनी है वो नोट नंबर 1 में लिखनी है, इसलिए मैंने 1 यहां पे लिखी, ठीक। और स्ट्रॉन्ग लिमिटेड लिखने के बाद आपने लिखना है बैलेंस शीट, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट जरूर लिखना है, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट द फुल बैलेंस शीट, इट इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। एक्सट्रैक्ट वर्ड यू विल नॉट फॉरगेट टू राइट। बैलेंस शीट अकेली वर्ड बैलेंस शीट का मतलब है कि आप पूरी बैलेंस शीट बनाओगे, आप डिबेंचर्स भी लिखोगे, आप रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखोगे, बट नो, वी आर जस्ट रिलेटेड इन द चैप्टर टू शो द contents of share capital, so that's why I always prefer to write extract. Extract means a piece of balance sheet just I am preparing. अब notes to accounts बनाएंगे भाई, और notes to accounts में से टोटल उठाएंगे, जो टोटल होगा वो इसके सामने लिख देंगे, राइट। इतना सबको क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? सो अब जो उसने लिखा है वो पहले पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, खुद उसने पहले तो मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो आप इसको दोबारा से फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि अमाउंट इज ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ रुपीस, ठीक है। हैड इट बीन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स तो आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखते। और ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी है, तीसरा नाम नॉमिनल कैपिटल भी, ठीक। तो आपने जो क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में बनानी है उसकी कैटेगरीज, वो आपने ऑथोराइज कैपिटल ही लिखना है। मींस कंपनी जब पहली बार खुली, कंपनी को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 10 लाख की कैपिटल की लिमिट मिली थी, जिसमें 1 लाख के इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था। कंपनी ने पब्लिक को 75,000 शेयर्स इश्यू करे, इट मींस की पहली लाइन आपको ऑथोराइज कैपिटल के बारे में है और सेकंड लाइन आपकी इश्यूड कैपिटल है, एम आई राइट? जिसके लिए आप पब्लिक को इनवाइट करते हो वो आपकी इश्यूड कैपिटल है, राइट। अब हम लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, सो आई हैव टू इरेज इट ऑल। Notes to accounts that will show the detail of the item specifically related with share capital, and it will always run in sequence. You can't break your sequence. You can't write subscribed capital at number 1 and issued capital at number 3. Every time you have to start with authorized capital. मान लो क्वेश्चन में नहीं दे रखी, you will be leaving it blank, but you will be writing at the first instance issued capital, right? So let me make the column here, notes to accounts.
If somebody asks from you, why do we prepare notes to accounts with balance sheet and with statement of P&L to show the detailed information about the items given in balance sheet और statement of P&L, आपको सिखाया हुआ है बुक नंबर 3 के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक। So this is notes to accounts. इसके भी कॉलम ऐसे ही चलते हैं भाई, नंबर 1, क्योंकि मैंने वहां पे फॉर्मेट में नोट नंबर 1 लिख दिया था, और नोट नंबर 1 में मेरी शेयर कैपिटल की डिटेल है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इधर वो रुपीस का साइन ही लिख देता है, ठीक है, शॉर्टकट। सबसे पहले हेडिंग साइन नंबरिंग ना करो यहाँ पे, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू नेम इट ऑथोराइज्ड कैपिटल, सो इट्स अनदर नेम इज रजिस्टर्ड कैपिटल एज वेल, पूरा वर्ड लिखना है कैपिटल, देन अंडरलाइन इट। अब क्या दिया उसने, 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल है एंड 10 लाख कंप्राइजेस 1 लाख शेयर, यहाँ पे डिटेल लिखनी है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके आपकी कैपिटल बनी 10 लाख। ड्रॉ द डबल लाइन बिकॉज इट इज नेवर टू बी एडेड इन द ग्रैंड टोटल। सेकेंड नंबर पे क्या आती है, इश्यूड कैपिटल, मैंने सारी स्टेटमेंट पढ़ ली हुई है, 2 लाइनें पहली, इश्यूड कैपिटल, देन अगेन अंडरलाइन दैट ही हैज गिवन इन द क्वेश्चन 75,000 शेयर्स पब्लिक को बेचने को हम तैयार है, सेम वर्डिंग, इक्विटी शेयर्स, अगर प्रेफरेंस हो तो साथ में प्रेफरेंस वर्ड लिख देंगे, इक्विटी शेयर्स अगेन फेस वैल्यू विल रिमेन सेम 10 ईच, 7.5 लाख। इट इज ऑल्सो नॉट टू बी एडेड इन द ग्रैंड टोटल, सो वी विल बी ड्रॉइंग द डबल लाइन सीक्वेंस। फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड इज इश्यूड कैपिटल। आपने लोगों को दिए शेयर्स 75,000, नाउ आई हैव टू सर्च लोगों की तरफ से कितने एप्लीकेशन आई, ठीक है, तो लेट्स सी। Yes, 75,000 के लिए आपने लोगों को इनवाइट किया था एंड यू आर रिसीविंग द एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स। तो अगला हम लोग और क्योंकि सिंपल केस वो बनाएगा, हाँ, डायरेक्टर्स ने सारे का सारा पैसा मंगवा लिया एंड आई विल बी अज्यूमिंग दिस इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अगर कोई अनपेड अमाउंट होगी या कोई शेयर होल्डर्स कुछ नहीं पे करेंगे तो दैट वी विल बी पुटिंग अंडर नॉट फुली पेड, लेकिन क्योंकि उसने सिंपल केस से स्टार्ट करना है, ही इज गिविंग यू द फर्स्ट सब हेडिंग दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। वी आर अज्यूमिंग सारे शेयर होल्डर्स ने सारी मनी पे कर दी, राइट। तो अगला हेडिंग बनाओ, सब्सक्राइब्ड, पहले कैपिटल लिखो फिर सब हेडिंग लिखना, सब्सक्राइब कैपिटल इज द सब हेडिंग। अब इसकी आगे सब हेडिंग है दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। कितने शेयर्स भाई, लेट मी एडजस्ट द कैमरा, लेट्स सी कितने शेयर्स, 70,000 shares. Equity shares, don't forget to use the prefix, at the rate of 10 each. So this comes to me 7 lakh. This is an amount which you will be writing under the head share capital, जो आपने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया था। उस बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में शेयर कैपिटल के अंडर जो हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड्स के अंडर जो सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, उसके आगे आप ये वाली अमाउंट उठाइए और वहां पे लिख दीजिए। आप अपनी बुक में चेक कर लो हाउ ही हैज प्रेजेंटेड, आई मेड दैट फॉर्मेट एंड देन आई इरेज्ड इट, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस द डिटेल ऑफ द कैपिटल्स विद यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑथोराइज्ड कैपिटल, draw the double line because it is never to be added in the grand total. Issued capital, write it here, then again draw the double line, it is never to be added in the capital, क्योंकि ये मिला थोड़ी ना, बैलेंस शीट में 2 चीज लिखनी है ना जो एक्चुअली आपके पास है। तो एक्चुअली आपको कितनी मनी मिली है, लोगों की एप्लीकेशन से कितने की आई, 70,000 की, 10 रुपए हर बंदे ने शेयर के बदले में पे किया, इट मींस कि हमें कितना मिला, 7 लाख। So this is the amount which you are getting actually. So 7 lakh you will be writing in your balance sheet. अब चलते हैं आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैं पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगी फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगी, ठीक है, रिवर्स चलते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सीक्वेंस रिपीटिंग, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, उसका आगे पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, देन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सो हियर आई गो विथ नोट्स टू अकाउंट्स। Its format, this is for particulars, ठीक है, वो particulars heading as such नहीं लिखता आप, you can also avoid, right? This is number 1 share capital, उसके नोट नंबर वाले कॉलम में आप लिख दोगे नंबर 1
शेयर कैपिटल, अब इसकी टाइप्स, लेट मी रीड इट। ऑन 1 अप्रैल 2019 विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म। पहली बार 2019 में विवेक लिमिटेड फॉर्म हुई, रजिस्टर्ड हुई, और इसकी ऑथोराइज कैपिटल थी 1 करोड़। 100 लाख है ना, सो दैट मीन्स की 1 करोड़ डिवाइडेड, अब की बार हर शेयर 50 रुपए का है और कंपनी ने शेयर्स इशू करे 2 लाख। पहली लाइन जैसे ही मैं पढ़ती हूँ मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल आ जाती है ना, सो हियर आई गो विथ, आई मेक द हेडिंग ऑथोराइज कैपिटल और उसके अंदर हम डिटेल लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। यू हैव टू राइट द फुल नेम, कैप नहीं लिखोगे, आप पूरा नाम लिखोगे, दैट इज 2 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate of 50 each, so that comes to us 1 करोड़। जीरोस ध्यान से गिन के लिखनी है 1 करोड़ की, ठीक है। अमाउंट शुड बी एक्यूरेटली रिटन। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस, 2 लाख कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर्स हैं पब्लिक को इशू करने के लिए, और कंपनी ने डिसाइड किया हम 2 के 2 लाख नहीं इशू करेंगे, हम इसमें से 180 लाख ही इशू करेंगे, 1,80,000 शेयर्स ही हम इशू करेंगे। तो इशूड कैपिटल अगला हेडिंग होगा, कैप 1,80,000 इक्विटी शेयर्स, 1,80,000 equity shares at the rate of once again 50 rupees. So it will come to us 90 lakh, right? 18 5 से 90, ठीक है? So it comes to us 90 lakh. Again draw the double line. 1 करोड़ कैपिटल आपकी मैक्सिमम लिमिट थी, आपने उसमें से सिर्फ 90 लाख की कैपिटल लोगों को इनवाइट किया, ठीक है? जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स आए आपके 1,80,000 and each share is having the face value rupees 50, 90. Draw the double line because it is not to be added in the grand total. Now our final capital we are going to write, that is subscribed. थोड़ा सा डिटेल देखिए यहाँ पे। हाँ, he has given me the installments. 15 रुपए कहता मैंने एप्लीकेशन पे मंगवाने हैं, given in your book. 20 रुपीज कहता मैंने अलॉटमेंट पे मंगवाने हैं। ओवरऑल आपके कितने हैं? 50 रुपए का एक शेयर है, 35 की उसने डिटेल दे दी, बाकी रह गए 15, वो कॉल मनी मींस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैक्सिमम सेकंड एंड फाइनल कॉल तक जा सकते हैं, बट इफ ही इज गिविंग कि मैंने एक ही कॉल में मंगवाना है, तो आई विल बी राइटिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं फर्स्ट के साथ ही वर्ड फाइनल लगा दूंगी, ठीक है। सो बाकी बैलेंस मेरे को पता चल गया, 35 यहाँ तक आ गए, ओवरऑल 50 रुपए तो हैं, बाकी 15 हम लोगों ने कॉल पे मंगवाने। आगे सुनो अगली लाइन का मतलब क्या, अदरवाइज आई एम सर्चिंग फॉर सब्सक्राइब कैपिटल। अगली लाइन में कुछ ऐसा ही लिखा है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। व्हाट इट मींस कि अगर आपने लोगों को 1,80,000 शेयर्स देने हैं तो 1,80,000 की ही एप्लीकेशंस आई, दैट इज व्हाट फुली सब्सक्राइब, ठीक है। लोगों की तरफ से भी एप्लीकेशंस आपको कितने की आई? 1,80,000 की ही आई, एंड कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स दे दिए। कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, यहीं पे मेरे को रुकना पड़ेगा। मींस कंपनी ने अभी तक ये 15 रुपए कॉल मनी नहीं मंगवाई। इट मींस कि कंपनी ने खुद ही फुली नहीं मंगवाया। 50 में से अगर कंपनी ने अभी तक 35 मंगवाया है, तो आपकी कैटेगरी का नाम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड ही रहेगा। चाहे कंपनी खुद ना मंगवाए पूरा, चाहे शेयर होल्डर्स पूरा ना पे करे, दोनों कैटेगरीज को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। क्योंकि 50 रुपए मंगवाने बनते हैं, लेकिन कंपनी ने बैलेंस शीट की क्लोजिंग डेट आ गई और ही हिमसेल्फ इज सेइंग कंपनी डिसाइडेड नॉट टू कॉल द फर्स्ट कॉल येट। कंपनी ने मंगवाया ही फिर कितना? 35 रुपए। तो सारी की सारी अमाउंट को आई विल बी राइटिंग सब्सक्राइब कैपिटल मेन हेडिंग, देन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक, चलो देखते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स की तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है, मेरे सारे शेयर होल्डर्स जितना जितना मैं उनसे मंगवा रही हूँ उतना उतना पे कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने खुद ही मंगवाए 35 रुपीज। ठीक, तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? लेट्स सी। अगला हेडिंग क्या बनाएंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। और सारी फुली पेड कुछ भी नहीं है, सारे का सारा क्या है? नॉट फुली पेड है। तो क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब एग्जामिनर को बता के आना है अमाउंट। हाउ विल यू बी कैलकुलेटिंग? दैट इज 1,80,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of the way he writes 1,80,000 shares। देखो जी वर्डिंग देखना, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, मतलब 50 रुपीज उसकी फेस वैल्यू थी। ₹35 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मीन्स कंपनी ने मंगवाया,
कंपनी आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे, कॉमा डाल के लिखो, ₹35 पर शेयर called up. Again I am repeating, the default is not from shareholder side, default is from, default नहीं है, कंपनी की अपनी पॉलिसी है, ठीक है. So 1,80,000 को 35 रुपए से मल्टीप्लाई करिए, that will come to us 63 lakh. So this is an amount which you will be showing in your balance sheet extract. ये वो अमाउंट है 63 लाख जो आप बैलेंस शीट में अपने जो बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, दैट इज एक्सट्रैक्ट, ठीक है. उस बैलेंस शीट में आप इस अमाउंट को क्या करेंगे, लिखेंगे 63 लाख. बुक में चेक कर लो. शेयर कैपिटल उसने क्या बनाया है, हेडिंग, शेयर होल्डर फंड्स उसने हेडिंग बनाया है, उसमें सब हेडिंग आपका क्या है, यस, शेयर कैपिटल, और उसके आगे आप लिख दीजिए 63 लाख. दिस इज एन अल्टीमेट अमाउंट विच यू रिसीव फ्रॉम योर शेयर होल्डर्स. Now see third illustration. Simple Machines Limited is registered. पहली लाइन हमेशा हमें क्या बताती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल. फिर से we will start with notes to accounts, क्योंकि बैलेंस शीट में तो यहां से अमाउंट उठानी है और वहां पे लिख देनी है. Ultimately, examiner is going to check your notes to accounts, how you are writing the contents over here. ठीक, notes to accounts. नंबर 1, नोट का नाम नंबर 1 है, नंबरिंग उसकी करनी है, और उधर बैलेंस शीट का जब एक्सट्रैक्ट बनाओगे नोट नंबर के कॉलम में आप 1 लिख दोगे, ठीक. और उसमें सबसे पहले यू राइट द फर्स्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ द कैपिटल इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. डन. सो हियर इट इज नंबर 1. हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल. सब हेडिंग में हम टाइप्स ऑफ कैपिटल लिखते हैं. सबसे पहली आपकी कैपिटल रहती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, which is never to be added to the grand total. Then we have to write issued capital, issued capital, and the third is subscribed. और उसके आगे दो सब पार्ट्स हैं, subscribed and fully paid, and then subscribed but not fully paid. Yes. For the first time in illustration number 3, he is differentiating between two types of shares. One is equity and other is preference. तो आपने दोनों शेयर्स की कैटेगरी अलग अलग लिखनी है. यू कांट मर्ज देम, क्योंकि दोनों की नेचर अलग अलग. सो ऑथोराइज्ड कैपिटल में हमारे पास है 50 लाख टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसमें 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मीन्स 40 लाख इक्विटी शेयर्स. और अब देखना 10,000 प्रेफरेंस है, नंबर कितना कम है, लेकिन फेस वैल्यू ज्यादा है, 100 रुपए का एक है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट प्रेफरेंस शेयर सिर्फ 10,000 है, लेकिन फेस वैल्यू इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, 10 टाइम्स मोर, दैट इज 100 रुपीज ईच. वट एवर ही गिव्स दैट आई राइट, सो इट कम्स टू यू 10. टोटल कर लीजिए 50 लाख आपके पास टोटल शेयर कैपिटल हो गई, कंप्राइजिंग इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, एंड देन ड्रॉ द डबल लाइन. सो दिस इज व्हाट ही इज telling you. Whenever two different categories are being given, you are supposed to write them separately, right?